welcome back to my channel, and I hope you have already watched my previous video, which was about how I prepared for my labor, like what pre-preparations did I do for my labor day. So as I promised that मैं next video hospital bag के ऊपर बनाने वाली हूँ कि exactly मैंने hospital bag में क्या क्या रखा था. It will be surely helpful for you because most important day of your life is going to arrive super soon, and for that we have to prepare the hospital bag because last moment पे कोई भी rush ना हो या फिर आप तो market जा नहीं सकते हो, तो you should not please anyone that please ये सामान ला दो वो सामान ला दो. So 8th month में या फिर 9th month में you can do or pack your hospital bag ताकि आपको last moment पे कोई भी दिक्कत ना हो. So here I start, and I am super sure that this video is going to help you out. Guys, this is a bit lengthy process, थोड़ा सा lengthy process है, but अपने बच्चे के लिए we can do this. So here I start. First of all, the most important thing a mom to be should keep in the bag is like lightweight maternity gown which has zip in front, which is used for the feeding purpose. Feeding purpose के लिए जो हम use करते हैं वो mom to be ने लेना चाहिए. That should be a very soft material, cotton material का लो ताकि बच्चे को भी कोई रैश की दिक्कत ना हो, because newborn baby की skin तो बहुत ज़्यादा sensitive होती है. तो for that you can prefer cotton, और जैसे ही आप बाज़ार से लेके आते हो उसको वॉश करो 2-3 बार and then just iron it and keep it nicely in your hospital bag. Because जैसे न्यू कॉटन का कपड़ा आप लेके आते हो, न्यू कॉटन गाउन आप लेके आओगे तो थोड़ा सा रफ होता है कपड़ा. When you will wash it for 2 to 3 times, the cloth will be super soft, so that won't make the baby's skin irritated. Then I will tell you that the most important thing for feeding, related to feeding, is feeding pillow, which comes in the C shape, right, which you are supposed to keep around your stomach. मैंने experience किया था मेरे hospital में that I was not having a nursing pillow. जैसे मैंने बोला कि मैं मेरे relatives या friends से suggestions लेती थी delivery के पहले. So this was the thing everyone said me, or a particular person said me that nursing pillow की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है. So don't waste your money in that. But जो pillows मैंने यूज़ किए हॉस्पिटल में that were not good. Like उससे proper grip नहीं मिल रहा था बच्चे को पकड़ने के लिए and to help the baby to latch. So नर्सिंग पिलो इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज उससे क्या होता है हम भी कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज वो नर्सिंग पिलो पूरा अटैच हो जाता है हमारे बॉडी से, एंड द बेबी इज़ ऑल्सो सुपर कंफर्टेबल बिकॉज यू आर ऑल्सो अ न्यू मॉम. लाइक दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू थिंग फॉर न्यू मॉम, और बेबी के लिए भी कुछ तो नया होता है. सो दैट विल मेक यू बोथ सुपर कंफर्टेबल. सो नर्सिंग पिलो प्लीज़ आप लीजिएगा. प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था, लाइक नर्सिंग पिलो जिस ब्रांड का मैंने यूज़ किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूँ. यू कैन जस्ट यूज़ इट. इज़ अ सुपर सॉफ्ट एंड इट इज़ वॉशेबल टू, सो you can surely use that. Next thing you have to keep in your hospital bag, that is nursing pads. What happens when we are new to breastfeed your baby, तो उससे latch करते वक्त your breast may be getting sore or dry, so that doesn't help a baby to latch on it. So option, you can keep your nursing pads also. Just keep your breast soft and prevent it from drying. You can have accessories for breastfeeding which makes breastfeeding super easy. If your doctor recommend you that use breast nipples which are super soft just like the bottle nipple, you can use that for breastfeeding also if your baby face difficulty in latching. Guys, keep diaper bag to keep all the stuff of your baby in a proper organized manner. I have used the diaper bag from Amazon, like I purchased it from Amazon. इट इज़ सुपर ईजी. उसमें हर चीज़ बेबी की इतनी अच्छे से आ जाती हैं. द डाइपर रैश क्रीम, द एक्स्ट्रा क्लोथ्स और द मसलिन क्लॉथ विच इज़ यूज फॉर swaddle purpose also. So you can sure prefer that bag. I will post the description box, so that will surely help you out.
For mommy to be, you have to keep maternity underwear with you because after your labor you will be getting your menses back. So हमें maternity underwear compulsory रखनी है हमारे बैग में. Your sanitary pads also with you. So this were all the things for new mom, that what new mom should keep in her hospital bag. अब जो मैं बताने वाली हूँ वो सारी essentials है newborn baby के लिए. फॉर न्यू बॉर्न बेबी हमारे इंडियन कल्चर में बोला जाता है कि आप पुराने कपड़े होते हैं बच्चे के या किसी बहन के, भाई के, किसी के भी बच्चे के पुराने कपड़े होते हैं, यू गेट इट फ्रॉम देम, यू वॉश इट एंड यू कीप इट. बट आई वुड टेल यू दैट मैंने ये चीज़ प्रेफर नहीं की दिव्यता के लिए. मैंने उसके लिए न्यू बॉर्न के कपड़े ऑलरेडी ख़रीद लिए थे 7th या 8th मंथ में. बोला जाता है बच्चा आने से पहले आपने शॉपिंग नहीं करनी चाहिए. टोटली योर प्रायोरिटी, लाइक योर थिंकिंग. आई फाइंड इट एज अ मिथ, मुझे ये मिथ लगता है. बट मैंने 7th 8th मंथ में ऑलरेडी दिव्यता के लिए शॉपिंग कर ली थी. लाइक यूनिसेक्स क्लोथ्स आई ऑलरेडी परचेस्ड दैट. वो बॉय के लिए भी चल सकता है, गर्ल के लिए भी चल सकता है. तो मैंने उस हिसाब से शॉपिंग कर ली थी ऑलरेडी. एंड व्हाट आई डिड, मैंने जैसे मार्केट से लेके आई, मैंने उसको 2-3 बार धोया अच्छे से डिटॉल में एंड देन सन ड्राई किया एंड देन आई जस्ट प्रेस्ड इट एंड आई जस्ट पैक्ड इट इन अ बैग, अ पॉलीथिन बैग, ताकि उसको कोई भी सीडन या फिर किसी ऑर्डर की स्मेल ना आए. एंड लेटर ऑन I purchased the langots also, which are cotton based langots. You can get it in the shop also in your local area, या फिर आप Amazon से भी purchase कर सकते हो. You can keep diaper also if you want to prefer diaper. Like foreign countries में तो pediatrician already बोल देते हैं कि आप diapers use कर सकते हो, but Indian culture में we don't use diapers at least till 15th day after birth. तो आप की प्रेफरेंस है आपको डाइपर यूज़ करवाना है या आप लंगोट यूज़ करवाना चाहते हो, तो ये दोनों चीज़ें आप प्लीज़ आपके बेबी के हॉस्पिटल बैग में रख दीजिए. Next thing you have to keep, that is pack of wet wipes, which is used after the pee or poop of the baby. So wet wipes जो super soft रहते हैं, मैं मीमी के यूज़ कर रही थी और अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ because I just love the fragrance of Mimi wet wipes and they are super soft and watery also. So I will just post the link below, you can just check out. Next, completely dependent upon the climatic conditions. If there is winter season, you can keep thermal wear for your baby, just in case कि baby को ठंड ना लगे, baby बीमार ना हो, you can keep thermal wear. Or else if the climate is too super normal, you can keep the cotton clothes which are super soft for the baby. Next is you have to keep soft blanket. As हमारे हॉस्पिटल में हमें ब्लैंकेट, फर्स्ट 2-3 डेज़ के कपड़े, सब कुछ दिया गया था बेबी के लिए. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल यू गो. सो हमने सॉफ्ट ब्लैंकेट रखा था दिव्यता के लिए कि जो एक बेबी को बहुत ज़्यादा वार्मथ दे, बिकॉज बेबी हैज़ अ वार्मथ क्लाइमेट इन आर बेबी सैक. सो वो वार्मथ उन्हें फील करना चाहिए एंड दे जस्ट हैव अ साउंड स्लीप. सो आप एक सॉफ्ट ब्लैंकेट रखो जिसमें अच्छे से वार्मथ मिले बच्चे को. सी दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट दैट आपने बीब रखना चाहिए हॉस्पिटल बैग में, बिकॉज स्टार्टिंग में तो बेबी जस्ट ड्रिंक्स मिल्क और स्पिल होने की कोई चांसेस है नहीं. बट देन ऑल्सो फॉर अ नेम सेक यू कैन कीप a bunch of handkerchiefs also, and you can keep beads also, totally up to you. You can keep soft handkerchief for your baby because जैसे मुंह पोछोगे आप, so that should be super soft ताकि उससे कोई भी रैश की दिक्कत ना हो, because बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. if you will do this much also, they get like a tomato at literally. so that soft this is the skin of the baby. You have to keep mattress or baby bed protector just like उनके नीचे रखने के लिए. हमारे हॉस्पिटल से हमें मैट्रेस दी गई थी बेबी के लिए, बट किसी किसी हॉस्पिटल में नहीं दिया जाता है. तो यू शुड कीप व्हाट वी से इन हिंदी, दैट इज़ गद्दी. तो एक मैट्रेस रखिएगा जो कॉटन की हो और जो सुपर सॉफ्ट हो और जिसको साइड में प्रोटेक्टर भी हो, ताकि बच्चा
वैसे तो बच्चे हिलते नहीं हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो कोई गिरने के चांसेस ना हो. With the soft blanket, you please keep the soft towel also, because दूसरे या तीसरे दिन से बच्चे को नहलाना स्टार्ट करते हो हॉस्पिटल में. उसके पहले तो स्पंजिंग ही की जाती है, बट आफ्टर हैविंग अ बाथ दे नीड अ सॉफ्ट टॉवल. हमने टॉवल यूज़ नहीं किया था, जो प्रॉपर टॉवल होता है वो यूज़ नहीं किया था. हमने कॉटन क्लोथ जो आता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट, वो हमने यूज़ किया था. बल्कि हम अभी तक दिव्यता के लिए हम वो ही यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो टर्किश मटेरियल जो आता है आई फाइंड इट अ बिट रफ. तो आई होप दैट till 1 year of the age I will be using the cotton cloth only after bath. Most important is प्लीज़ आप मिटन्स परचेस करिए, क्योंकि क्या होता है आफ्टर बर्थ, इफ़ यू नोटिस बेबी के नील्स थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, एंड व्हाट दे डू इज़ दे जस्ट कीप ऑन स्क्रैचिंग देयर फेस और देयर हैंड्स और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. सो फॉर दैट एटलीस्ट फर्स्ट 2 to 3 months प्लीज़ यूज़ मिटन्स टू योर बेबी. और स्टार्टिंग में मॉम टू बी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो नेल्स कट करना, बिकॉज बेबीज़ आर नॉट स्टेबल. सो दैट विल द मिटन्स विल श्योरली प्रिवेंट देम फ्रॉम स्नैचिंग देयर सेल्फ. Next thing, which is if you prefer using diapers, please use rash cream, because that will prevent from getting the rash on their body. जैसे बेबी की स्किन सेंसिटिव होती है तो रैश क्रीम इज सुपर इम्पॉर्टेंट, ताकि उनको रैशेस ना हो. नेक्स्ट इज़ ऑयल एंड पाउडर. मेरे को ये दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगी थी, बट आफ्टर कमिंग होम देर वॉज अ नीड ऑफ ऑयल एंड पाउडर ऑल्सो, लाइक टाल्कम पाउडर. वो बेबी को पूरे बॉडी पे अप्लाई किया जाता है आफ्टर बाथ. गाइस, हियर आई कंप्लीट व्हाट आर द सुपर एसेंशियल थिंग्स फॉर अ न्यू मॉम एंड न्यू बॉर्न बेबी. सो आई होप दैट ये वीडियो आपको हेल्प करे just to pack your hospital bag. And if you have any additional thing that you want to add in your hospital bag, you can just comment below. And मैंने जो products यूज़ किए हैं मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, ताकि आपको ईजी हो परचेज करने के लिए. Thank you so much guys, and if you have not subscribed my channel, do share my channel with your loved ones. And thank you so much. Bye bye.